Hello, wait. Yesterday we have learnt about how to change the direct sentence into indirect one, which is only related to assertive sentences. No, the reported speech related to assertive sentences. Today we will talk about if the reported speech related to interrogative one, right? So see how can we change this. For this I want to write two more examples. He said to me, are you going to market? Question mark. Another one of the sentence, Raju said to me, when will you return my book? Here you see, as I told earlier, this sentence has two parts. First one is called the reporting verb, and the sentence which is within inverted comma is the reported speech. Here you see two sentences I have written. The first one of the sentence which is within inverted comma, are you going to market? And the second one, when will you return my book? Two sentences I have written, and you see both the sentence ends with the question mark. Certainly it is related to the question. No? And you know better that questions are of two kinds, ordinary interrogative and WH questions. Here first one is related to ordinary interrogative and second one is the WH question. But the matter is that how can we recognize that is it related to ordinary or the WH question? Whether the ordinary or the WH question. Very simple tricks I have taught you in previous classes also. You find only the answer. What should be its answer? Are you going to market? You see, if the answer is only paid by telling yes or no, it means that is the ordinary question. If something is to be said for reply, that is called the WH question. Here, are you going to market? Simple सा जवाब आप दे दोगे yes या no में, तो ये वाली ordinary interrogative है. लेकिन when will you return my book? Yes sir. When will you return my book? No sir. It means it is not the proper answer. You have to tell something regarding this question. No. तो it is the WH question. तो सिंपली आपने क्या जाना कि दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ऑर्डिनरी इंटेरोगेटिव और WH क्वेश्चन, और दोनों के रूल अलग अलग होते हैं. इफ यू वांट टू चेंज दिस डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट वन, so then you have to face the two different kinds of rule which is only related to the sentences which is within inverted comma. कल को भी मैंने बताया था आप लोगों को कि आपको ध्यान सबसे ज्यादा देना है रिपोर्टेड स्पीच पर. कौन सा मेन सेंटेंस है? रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच में मैंने बताया था क्या ध्यान देना है. सबसे पहले तो यह गेन करना है कि किस तरह के सेंटेंसेस हैं. यस्टरडे को देखा था कि सारे सेंटेंस असर्टिव के बनाए थे और उसके क्या रूल थे. लेकिन आज के जो सेंटेंसेस हैं विद इन इन्वर्टेड कॉमा, यह एक दूसरे तरह का सेंटेंस दिख रहा है. कल वाली असर्टिव था और आज वाली WH क्वेश्चन है. आज वाली कौन सी है? WH क्वेश्चंस हैं. बात समझ रहे हैं? या ऑर्डिनरी इंटेरोगेटिव है. टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ, कल के तरह का नहीं है. यह एक अलग तरह के सेंटेंसेस हैं, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं. और ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से चेंज करना है ये हमको देखना पड़ेगा. तो ये दो तरह के डिफरेंट सेंटेंसेस दिख रहे हैं विद इन इन्वर्टेड कॉमा. यही मेन फोकस करना है तुम लोगों को. अब तो इतना तो हम लोग जान गए कि ये वाली ऑर्डिनरी है और ये WH क्वेश्चन है. अब रूल देखते हैं, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाले को कैसे चेंज किया जाता है. रूल को ध्यान में रखना है. थोड़ा सा पीछे भी बार बार मैं तुम लोग को रिमाइंड करा रहा हूँ. उसके पीछे रीजन है कि आप असर्टिव सेंटेंस देखे थे तो इससे वर्ब को किसमें चेंज किए थे आपने? टेल
वर्ब में चेंज किए थे। सेड है तो टोल्ड हो गया था, लेकिन आज तो वो असर्टिव सेंटेंस है नहीं, तो ये वाली टेल के फॉर्म में तो बदलेगा नहीं, तो ये किस में बदलेगा, ये से वर्ब आस्क के फॉर्म में बदल जाएगा। यू नो ऐसे से, सेड, सेड, तो ये आस्क में बदल जाएगा, आस्क, आस्क्ड और आस्क्ड। तो ये वाली सेड के जगह पर क्या यूज करेंगे, आस्क का, क्योंकि our reported speech is related to the interrogative one, क्वेश्चन मार्क है, आया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन वाली सेंटेंस का हम लोग किस तरह से चेंज करते हैं। पहली रूल क्या देखा, इससे वर्ब को किस में चेंज कर देंगे, आस्क के फॉर्म में चेंज कर देंगे, राइट। तो इतना कर देते, मैंने तो कल भी बताया था कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बदलेगा, बदलने हैं तो सिर्फ इसको बदलने हैं, और वो भी डिपेंड करता है इसके ऊपर कि यह किस तरह का सेंटेंस है। कल को असर्टिव था तो हम लोगों ने टेल में बंद कर दिया था, लेकिन आज को तो इंटेरोगेटिव है, तो इसको तो नहीं बदलने हैं, लिख लिया, ठीक है। अब इस सेड के जगह पर क्या हो जाने हैं, तो मैं आस्क भी यहाँ पर लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट रह गए, तो ऑब्जेक्ट को बदलने कि नहीं बदलने हैं, नो चेंज करने, इसके चेंजिंग तो होंगे नहीं, तो इसको मी लिख दिया। अब याद कीजिए कल वाली बात, कल हम लोग कौन से कंजक्शन का यूज करते थे, दैट का यूज करते थे। रीजन इज दैट द सेंटेंस व्हिच इज विदिन इनवर्टेड कॉमा इज रिलेटेड टू द असर्टिव वन, बट आज को क्या है, इंटेरोगेटिव है, आज हम दैट का यूज नहीं करेंगे। नहीं? मैंने बताया कि रूल बदल जाएंगे, तो रूल यहाँ भी बदल गया, एक चीज तो यहाँ बदल गई, अब यहाँ पर दैट का यूज करते थे, नहीं करते हैं। अब रूल समझना है क्या है, रूल कहता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच वाली सेंटेंस अगर कोई ऑर्डिनरी इंटेरोगेटिव हो, ध्यान देना, अगर कोई ऑर्डिनरी इंटेरोगेटिव हो तो यहाँ पर दैट कंजक्शन जहां लगाते थे उस जगह पर इफ या वेदर का यूज करते हैं। ये वाली ऑर्डिनरी इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर इफ या वेदर का यूज करेंगे, तो ठीक है, मैंने इफ लिख दिया, दैट का काम करना शुरू कर दिया, बिकॉज इफ इज ऑल्सो द कंजक्शन, इट इज ऑल्सो यूज टू ज्वाइन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स और द क्लॉजेज, राइट। तो यहाँ पर इफ लिख दिया। अब दूसरे सेंटेंस में आइए, उधर की तरफ अभी नहीं जाते हैं, अब दूसरे सेंटेंस में आइए। दो सेंटेंस मेरा लेने का यही मकसद था कि आप इसको क्लियरली समझो कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों के क्या रूल कैसे काम कर रहे हैं। तो दोनों साथ साथ लेकर चलते हैं तो पता चल जाएगा आप लोग को कि क्या अंतर है, राइट। इसीलिए तो कंबाइंड डिस्कशन में दोनों सेंटेंस का साथ में दोनों के रूल को कर रहा हूँ। ध्यान रखना है, बहुत सिंपल है, सिर्फ समझना है। आप यदि समझ जाते हो तो वेरी सिंपल। तो चलो भाई, यहाँ भी इसको सब्जेक्ट को चेंज करने थे क्या, नहीं करने हैं, लिख दिया राजू। अब क्या लिखना है यहाँ पर, आज लिख दिया, और ये क्या लिखना है, मी ऑब्जेक्ट है, और यहाँ क्या लिखना है। अब देखो मैंने बताया कि अगर ऑर्डिनरी इंटेरोगेटिव रहे तो, ये तो ऑर्डिनरी इंटेरोगेटिव है तो इफ लगाया था, लेकिन अगर ना रहे तो इफ या वेदर नहीं लगाए, वेरी सिंपल। अगर ऑर्डिनरी इंट्रोगेटिव है तो लगाएंगे, अगर ऑर्डिनरी इंट्रोगेटिव नहीं है तो नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, कुछ तो लगाना पड़ेगा, ऐसे कैसे होगा। तो नियम कहता है कि अगर WH क्वेश्चन रहे तो ऑर्डिनरी इंट्रोगेटिव है तो इफ, अगर WH क्वेश्चन रहे तो सेम WH वर्ड को ही लिख देते हैं, यानी इफ या वेदर नहीं लगाए। देखे यही सेम आ गया। अगर यहाँ जो रहेगा व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, कुछ भी रहेगा तो उसी को यहाँ लिख देना है। बात समझ में आई? ये नहीं कि यहाँ व्हेन है तो आपने मन से व्हाट लिख लिया ना। तो मैंने बताया कि ये तो WH क्वेश्चन है, तो WH क्वेश्चन में इफ और वेदर का यूज करना नहीं है। तो क्या करना है, जो सेम WH वर्ड है उसी को रख देना है। यहाँ पर व्हेन है, व्हेन रख दिया, अगर व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन कुछ भी रहता है तो उसको यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल कहता है कि इसके बाद आपको सब्जेक्ट रखने हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, गलतियां यहाँ पर कर देते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट रखना है। तो आप फर्स्ट सेंटेंस में देखो
सब्जेक्ट आई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट क्या है? यू सेकंड पर्सन है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट मी है, तो मी के अकॉर्डिंग आई हो गया। इतनी बातें तो समझ में आई कि इस कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट रखने हैं। अब पुराना ही रूल काम करता है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट देन रिपोर्टेड स्पीच मस्ट बी इन द पास्ट। एज द सेम रूल यहाँ भी काम करता है। तो देख रहे हैं कि आप ये सेड लिखा हुआ है, ये पास्ट है, तो इसको भी पास्ट में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो हो ही गया, तो आई के साथ अकॉर्डिंग टू वाज और वर क्या लगेगा? वाज। अब नाउ गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं रखेंगे, ये रूल है, यहाँ पर फुल स्टॉप दे दीजिए। वैसे ही यहाँ भी चेंज कर लीजिए, आई हो गया। अब विल का पास्ट तो वुड हो जाएगा, वुड। अब रिटर्न, माई चेंज होगा। माई किसे बना है? आई से, तो आई फर्स्ट पर्सन है, विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट राजू। राजू के लिए ही, तो आई मी माई, ही हिम हिज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिज बुक। और फुल स्टॉप लगाएंगे। बात समझ में आई? मैं दो और एग्जांपल देता हूं, इस दो एग्जांपल को आप सपोर्ट करना, देखते हैं कि वो आप समझ पा रहे हो कि या नहीं समझ पा रहे हो। इरेज करूं मैं? यस सर। She said to Gopal, will you help me? Mohan said to her, what is in your pocket? Change it. हियर मैं आपको हेल्प कर दूं, ये ऑर्डिनरी इंट्रोगेटिव और ये WH क्वेश्चन है, आप जान भी रहे हो, बट मैंने बताया कि यू रन द रूल्स कंटिन्यूअसली इन योर माइंड, दिमाग में दोहराइए रूल। तो चलो बताओ हमको, देखते हैं क्या है। व्हाट इज टू बी रिटन फर्स्ट? सी आस्क्ड गोपाल। ये जी मैंने कैपिटल क्यों रखा? क्योंकि नेम है। यहाँ पर सी में एस क्यों कैपिटल रखा है? क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर, राइट। अब यहाँ पर क्या रखूं? इफ, क्योंकि इफ या वेदर दोनों में से कोई भी रख सकते हो आप, क्योंकि ये ऑर्डिनरी इंट्रोगेटिव है। इफ, और इफ के बाद क्या रखना है? सब्जेक्ट। बोलिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? यू सेकंड पर्सन है, विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। और क्या है? गोपाल। तो गोपाल के लिए क्या होगा? आई होगा कि ही होगा? तब आई कैसे बोल रहे हैं? ही। और ये पास्ट में, तो इसको भी पास्ट में, विल का पास्ट क्या हो जाएगा? वुड, हेल्प, और मी आई से बना है, सी के अकॉर्डिंग चेंज होगी, आई मी, सी हर, क्या हो जाएगा? मी के जगह पर हर। और अब फुल स्टॉप दे देते हैं। दूसरे वाले को भी बनाते हैं। क्या लिख दूं पहले? मोहन आस्क्ड हर, yes, right, because it is the WH question, so that you have to place the same WH word. What is written here? What. Place the what. Now find the subject. What is subject here? What is in your pocket?
अब यहां पर तो सब्जेक्ट नहीं रखने भाई, अब यहां पर डायरेक्ट पास्ट कीजिए इसको। वाज इन और योर सेकंड पर्सन यू का फॉर्मेशन है हर के अकॉर्डिंग, यहां पर क्या हो जाएगा, हर ही हो जाएगा। यू यू योर, सी हर नहीं तो हर पॉकेट हो जाएगा और फुल स्टॉप दे दीजिए। मैं 2 एग्जांपल और दूंगा, मैं 2 एग्जांपल और दूंगा, ध्यान रखना है। पहले इसको फिनिश कीजिए। हो गए फिनिश? ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं 2 एग्जांपल और दे दूं और मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा कि अब आपने समझ गए। आप लोग को समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो 10 दफा पूछिए हमसे, जितने दफा पूछना है पूछ सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। रोहन said to me, is Maya your sister? क्या माया तुम्हारी बहन है? I said to him, when will you go to Delhi? Change it. तो वही चेंज करो, तो बताओ व्हाट इज टू बी रिटन फर्स्ट? रोहन asked me, because it is the ordinary interrogative. If अब now place the subject, Maya is the third person, can we be able to change it? No changing. So that write down the same one of the thing. Maya, अब now it must be changed into past. What should be? Was. Now your is the formation of you, it is of second person, will change according to object. Me is the formation of I, you your, I me my. What is my sister? Right? You have done the same. अब now see the second one. I asked him, place the same WH word when. अब now subject you second person will change according to object. What is the object here? Him. Him is the formation of he, so that place he. अब now it is in past, so that it must be changed into past. What should be? Would. Would when he would go to Delhi. Place the full stop. Right? You have also done so? Very good. I am very happy that I make you assure. In this way you can change the assertive sentence and interrogative sentence. If it is related to direct one, you must change it into indirect one in this way. Right? Yes. Thank you.